ہم اب گاڑی کے اندر کیسے بیٹھیں گے؟ شاہ سائیں وہ گاڑی کے سامنے کھڑے تھے، تبھی نور حرم نے اپنا اور اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں گستاخ لڑکی، یہ سوچنے والی بات ہے، ہم اب اندر کیسے بیٹھیں گے؟ غزلان سائیں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بینڈیج لگے ہاتھ سے کیسے بیٹھیں گے گاڑی کے اندر۔ تبھی نور حرم غصے سے کہنے لگی، یہ ساری غلطی ہماری ہے، ہم ضد نہ کرتے تو اس وقت یہاں کھڑے یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ گاڑی کے اندر ہمیں کیسے بیٹھنا ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی بولی، کوئی بات نہیں لڑکی، یہاں آئے۔ وہ اسے لیے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر اس سے پہلے اسے اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ چپ چاپ جا کر آگے بڑھی اور اس کے ہلنے پر غزلان سائی بھی آگے بڑھا۔ وہ اندر گئی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ہماری طرف دیکھیں اور ہمارے نزدیک آئیے گستاخ لڑکی۔ وہ ہاسپٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو غزلان سائی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ اس سے دور ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں مزید نیچے جھکا کر بولی۔ اب وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی یا شرم سے سرخ ہو رہی تھی، یہ غزلان سائی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم سے دور جانے کا آپ سوچیے گا بھی مت، ورنہ ہم اتنے پاس آئیں گے کہ آپ کی سانسیں ہماری جنونیت سہ نہیں پائیں گی۔ غزلان سائی کی زور سے جھٹکا دینے پر وہ اس کی گود پر جا گری۔ نور حرم اس کی نزدیکی اور اپنی پشت پر اس کی انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی اور اپنی گردن پر اس کے دھمکتے ہوئے ہونٹوں کی تپش کو محسوس کر کے وہ اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر کو شدت سے دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ غزلان سائی کی نظروں کے پیام سے اس کے چہرے کی رنگت زرد رنگ میں بدلتی جا رہی تھی اور اب جو اس نے کہا اس سے تو وہ اور بھی زیادہ سہم کر رہ گئی تھی۔ آپ شاپنگ پر چلیں گی ہمارے ساتھ گستاخ پاگل لڑکی؟ وہ اس ہاتھ سے جس پر بینڈیج نہیں لگا تھا اسے تھوڑی سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ نور حرم شاپنگ کا نام سن کر خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خوش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس کے منہ سے پہلی بار شاپنگ پر چلنے کا سن کر ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور ہم چلیں گے، لیکن رات کے اس وقت آپ نے پلان کیوں بنایا؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی تو غزلان سائی اسے پہلے کی طرح دیکھ مسکرایا، کیونکہ رات کے 11 بجے ہم گاؤں کے لیے تو نہیں نکل سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ صبح ہونے تک ہم لوگ شہر کی سیر کر لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مطلب فل انجوائمنٹ؟ وہ چہکتی ہوئی اس کے گالوں کو شرارت سے کھینچتی ہوئی اپنی ایک آنکھ بے باکی سے دبا کر کہنے لگی، اسی طرح بے باک نگاہوں والی گستاخ لڑکی ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ کی نظروں میں ہمیں خوف نظر آیا تو ہم آپ کو سزا دیں گے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے ذہن میں چل رہا تھا ہم اسے بھی سچ ثابت کر دیں گے۔ وہ بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو نور حرم اپنی ازالی بے باک انداز میں اس کے چہرے کو پکڑ کر وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر شریر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہ سائیں، کیا چل رہا تھا آپ کے ذہن میں کچھ دیر پہلے جسے آپ سچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا سر اس کے کشیدہ سینے پر رکھتی اس کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ غزلان سائی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس سے ماسک پہنانے لگا تو وہ حیرت سے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ماما بابا کا پلان بنا رہے تھے ہم ہاسپٹل کے کوارٹر میں آپ کو اپنے سینے سے لگاتے وقت، اگر آپ خوفزدہ نظر آئی نا اس بات کی وجہ سے، ہم سچ میں اس پلان پر عمل کریں گے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو ماسک کے اوپر سے دباتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا اسے لہذا کر رکھ گیا۔ وہ خوفزدگی لیے اچانک اس کے سینے سے ہٹی اور اس سے دور ہونے لگی۔ آپ یہ ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کی پلان پر عمل کرنے والی بات کو سن کر وہ اپنے خوفزدہ تاثر کو درست کرتی ہوئی اس کے چہرے پر لگے ماسک کی جانب اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیونکہ کوئی ہمیں ہماری گستاخ بیوی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے نہ ڈسٹرب کرے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نور حرم آج اس کے انداز پر سخت دل میں خوف کی لہر کو ڈرتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آج سے پہلے وہ اس سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی اس کے دل میں اس کے چھونے کا خوف اور نزدیک آنے کا خوف اچانک یہاں آ کر برپا ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح شرارتیں کر کے اسے تنگ کر پا رہی تھی۔
वो क्यों भला हमें वहाँ मॉल में कौन डिस्टर्ब करेगा, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, डेट पर नहीं जा रहे। वो इसकी बैंडेज लगे हाथ की कैद में नाजुक हाथ कैद किए बेबसी से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, इसीलिए दिल में हजारों ख्वाहिशात लिए वो सख्त हिरासा लहजे में उससे पूछने लगी, जो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, गुस्ताख लड़की ये डेट क्या है। वो इतना मासूम बनकर उससे पूछने लगा, हालांकि वो सब कुछ जानता था, वो अनजान नहीं था। इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो इन सब से पहले से ही वाकिफ था, मगर आज उसे खौफजदा देख वो शरारत से मस्कीन शक्ल बनाकर उससे डेट के बारे में पूछने लगा। डेट? नूरे हरम के दिल की धड़कन की सदा बुलंद हो रही थी, वो धड़कनों की शोर से परेशान हो रही थी, इसीलिए उस पर नजर नहीं रखे हुए थी, वरना अगर उसकी शरारत भरी चमकती निगाहों में देख लेती तो उसकी शरारत समझ जाती और उसे वो सजा देती कि वो जितना बेशरम बन रहा था अपना चेहरा सुर्ख कर लेता। हाँ डेट, ये क्या होती है, क्या कोई जगह का नाम है? अगर जगह का नाम है तो गुस्ताख पागल बीवी हमें बताए, हम आज रात वहीं जाकर गुजारते हैं। वो जगर जगर करती निगाहों से उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, शाह साईं आप भी ना आगे देखिए, वरना इस दिन की तरह आज आप एक्सीडेंट करेंगे जैसे हमने किया था। वो उसे आगे की तरफ देखने का कहती उससे दूर हुई। जब वहाँ हमारी गुस्ताख बीवी इस वक्त इस कदर खूबसूरत लग रही हो कि हमारी नज़रें बार बार सड़क से भटक कर उस पर जा ठहर रही हों, तो क्या खाक हम अपनी नज़रों पर कंट्रोल रख कर इन्हें सामने सड़क पर जमाने में कामयाब होंगे। वो उसे एक नज़र देखने के बाद वापस सड़क पर देखते हुए भारी आवाज़ में बोला। नूरे हरम उसकी बात पर शर्म से सरो नाखून तक सुर्ख होकर रह गई थी। माल पीछे वो नजरें खिड़की से बाहर करके बाहर के मनाज़र में खुद को गुम करने लगी, जब मगर माल को पीछे जाते हुए देख वो तेजी से बोली, लेकिन हम अभी भी वहीं हैं गुस्ताख बेगम। गाड़ी रोक कर वो संजीदगी से सीट बेल्ट खोलने के लिए इसके ऊपर अचानक से झुका और सीट बेल्ट खोलकर इसके कान के लू को छूकर गंभीर इशारा करते हुए यकदम से पीछे हटा। चले आए चलते हैं। वो गैब दिमागी से इसके लफ्ज़ों को सोच रही थी, करीब से उसकी भारी आवाज़ पर चौंकी और नजरें सामने दरवाजे खोले खड़े गजलान साईं पर मुस्कर कर गई, जो अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था। हाँ चले। वो अपना नाजुक हाथ उसकी मजबूत हथेली पर रखकर नीचे उतरी तो वो दरवाज़ा बंद करके गाड़ी को लॉक लगाकर उसे लिए माल की जाने बढ़ा। इस वक्त दोनों मास्क से चेहरा छुपाए हुए थे और ये गजलान साई ने इसकी सेफ्टी के लिए किया था, ताकि गांव के लोग उसे इसके साथ देख ना लें। अगर इनमें से किसी ने उसे एक लड़की के साथ देख लिया तो इसके साथ साथ नूरे हरम को भी वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे, जो गजलान शाह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि इसकी वजह से नूरे हरम को कोई तकलीफ हो। शाह साईं ये शॉप तो वो जब माल के एक शॉप के सामने आकर रुके तो नूरे हरम की नजरें ऊपर शॉप के नेम पर पड़ी तो वो शर्म से सुर्ख होकर उससे पूछने लगी। गजलान शाही बाज़ेह संजीदगी थी, चेहरे पर सजाए हुए था, लेकिन इसके इस रूप को देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था। वो जान बूझकर उसे यहाँ एक गोल्डन नाइट के सूट वाली शॉप पर लाया था। ये सूट वाला प्लान हाथ में पकड़े मोबाइल स्क्रीन पर नजर आते गोल्डन नाइट सेलिब्रेट प्लान वेब से लिया था। वो अपनी नजरें मोबाइल स्क्रीन से हटाकर उसके सुर्ख चेहरे पर मैनी खेजी से मस्कर करता मुस्कुराने लगा। हाँ हमें पता है, हमने ये शॉप माल के लोकेशन से मालूम किया है। क्यों आपको यहाँ से सूट नहीं लेना क्या? वो इतनी मासूमियत से बोला। नूरे हरम हक्का बक्का रह गई और सोचने लगी कि ये शख्स नाटक कर रहा है या सच में उसे पता नहीं है कि ये शॉप किस चीज़ की है, जबकि वो हॉस्पिटल से निकलती ही उसकी नक्शे कदम पर चल रहा था। आज उसकी तरह शरारत वो उसकी के अंदाज में कर रहा था। शाह साईं ये शॉप उन जैसे सूट का नहीं है। ये कहते हुए आज पहली बार उसकी हथेली भीग रही थी और चेहरा सुर्ख अनारी हो रहा था, जो गजलान साईं को मज़ा दे रहा था। तो फिर ये किस तरह के सूट की शॉप है हमारी गुस्ताख बेगम? वो मासूम नज़रों से उसे देखते हुए अपनी आंखों को मजीद फैलाकर पूछने लगा। हम नहीं जानते शाह साईं, आप चलें आगे चलते हैं। वो सटपटा कर उसकी कलाई सख्ती से पकड़ती हुई आगे की जाने बढ़ने लगी, लेकिन गजलान साईं के खींचने पर वो उसकी ऊपर आ गिरी। गुस्ताख लड़की, यहाँ से कुछ लिए बगैर ऐसे कैसे हम यहाँ से चले जाएं? चले, यहाँ से जो भी मिलता है वो लेकर हम फिर आगे चलते हैं। आज हमारे इस शहर में रात गुजारना है तो क्यों
क्यों ना इस वक्त का मज़ा ले लें, यहाँ से हर चीज़ खरीद कर अपने साथ हवेली लेकर जाएंगे। वो उसे खींचता शॉप के अंदर दाखिल हुआ। नूरे हराम सिर्फ नहीं नहीं करती रह गई थी। वो जब अंदर दाखिल हुए तो सामने दो लड़कियों को देखकर पहले तो गजलान सईद थोड़ा संजीदा हुआ, फिर नूरे हराम के सुर्ख चेहरे पर इसकी नज़रें पड़ी तो वो मुस्कुरा उठा। हेलो सर, हेलो मैम, दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा। यहाँ ऐसा क्या मिलता है जिसे पहनकर हमारी बेगम बहुत खूबसूरत लगे? गजलान साई ने नज़रें नूरे हराम से हटाए बगैर उन लड़कियों से कहा, जबकि नूरे हराम पहले इन तस्वीरों को देखकर इतनी शर्म से पानी पानी नहीं हुई थी जो आज इस शॉप में लगी तस्वीरों को देखकर हो रही थी। सर, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपकी वाइफ पर। एक सफ़ेद ब्लाउज वाली शॉर्ट नाइटी की जानब इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। नूरे हरम की नज़रें जब उस नाइटी पर पड़ी, वो अपनी नज़रें तेज़ी से हटाकर बाहर की जानब देखने लगी। इससे भी और खूबसूरत नहीं है जो सूट हमारी बेगम की खूबसूरती से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। गजलान साहब इस नाइटी को देखकर नूरे हरम की जानब देखते हुए बोझल लहजे में कहने लगा। पहले तो वो शरारत की वजह से बस यहाँ आया था, लेकिन अब नाइटी को देखकर इसका दिल मचलने लगा। इन्हें खरीदने के लिए वो इस लड़की को हाथ के इशारे से इस नाइटी को पैक करवाने का कहता शरारत से कहने लगा। शाह साहब, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना, चलें यहाँ से। वो उसकी बातों से सर तो पैर सुर्ख अनारी होती उसे पकड़कर बाहर की जाने बढ़ने लगी, लेकिन उस लड़की के एक बैग देने पर वो ठहर कर गजलान साई को देखने लगी। हमने कहा ना, हम इस माल के सभी शॉप से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, तो हम ये आपके पसंद आया तो हमने ले लिया। वो उसकी जानिब देखते हुए आंखों में मोहब्बत का प्याम लिए कहने लगा। नूरे हरम और वो दोनों शॉप से बाहर निकले। नूरे हरम अब उसे इग्नोर कर रही थी। नूरे हरम की नाराज़गी की वजह से वो लोग माल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब तो आप हमारा हाथ निकाल दें इस बैंडेज से शाह साईं, हमें अच्छा नहीं लग रहा इस तरह हमारा और आपका हाथ एक साथ जुड़ते हुए देखकर। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपनी अपनी कुर्सी साथ में जोड़कर बैठे हुए थे। इसका सैंडविच वाला हाथ उसने जानबूझकर अपनी गोद पर रखा था, जबकि वो अब बहुत ज़्यादा पछता रही थी। अस्पताल में गजलान साई के हाथ में बैंडेज लगाते वक्त डॉक्टर ने उससे क्यों इतना जिद किया अपना हाथ उस बैंडेज के अंदर डालने के लिए। वो इस मनाज़र से डर चुकी थी कि इसकी सारी शरारत कहीं गुम हो कर रह गई थी, सिर्फ इस लड़की की दर्द से चीखने की वजह से और इसके सेहतमंद जिस्म से। और अब वो गजलान साई से दूर होने के लिए पर तोल रही थी, मगर गजलान साई से दूर जाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। गुस्ताख लड़की, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि सुकून मिल रहा है आपकी हथेली से फूटती नमी अपनी हथेली पर गिरते हुए महसूस करके हमें अपने ज़ख्म पर ठंडक का एहसास हो रहा है। वो अपनी बैंडेज लगे हाथ के अंदर दिए इसके नरम हाथ को महसूस करते हुए मैंने खेजी से मुस्कुरा कर बोला, आपको तो अच्छा लग रहा है, हमारी तो जान निकल रही ये सोच कर कि हम और आप। जब वो आगे का सोच कर बुरी तरह से झुरझुरी लेने लगी, जब क्या इससे भी आगे कुछ बोले। गुस्ताख लड़की, हम पीर गजलान शाह हैं, कोई नजूमी नहीं जो आपकी छोड़ी हुई बात का हमें पता चलेगा। वो शरीर नज़रों से उसे देखते हुए दूसरे हाथ को उसकी टेबल पर रखे हाथ पर रख कर कहने लगा। नूरे हरम उसके लम्स से डर गई और तेजी से अपना नाजुक हाथ उसकी मजबूत हाथ के नीचे से खींचकर उसे देखने से गरेज करती नजरें नीचे झुकाकर फर्श को घूरने लगी। शाह साहब, आप क्यों उस बात को लेकर हमें इतना तंग कर रहे हैं? हम बहुत डर गए थे। आप हमें दिलासा देने की बजाय हमें मजीद डराने लगे। आप बहुत बुरे हैं। वो दूसरी जानिब देखती मुंह फुलाकर बोली, अरे हमारी गुस्ताख बेबाक लड़की, इतनी सी बात को लेकर डर क्यों गई है? हम तो आपको बहादुर समझते थे और आप इतनी डरपोक निकली। चे चे चे। वो उसकी खफा होने की परवाह किए बगैर उसका मजाक उड़ाकर उसे चैलेंज करने लगा अपनी बातों से, और वो भी गुस्से में आकर अपना और उसका बैंडेज में मुकीद हाथ ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। हम किसी बात से नहीं डरते, अब हम आपको माँ बनकर दिखाएंगे और बड़ी बहादुरी से इससे गुजरेंगे भी। उस लड़की की तरह डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी नहीं रोएंगे और ना ही हॉस्पिटल के लोगों को अपने ऊपर मजाक उड़ाने देंगे, समझे आप शाह साईं? वो
उसी बेबाक लहजे में कहती गुजरान शाह को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। सच में गुस्ताख लड़की, आप आटे की बोरी बनने के लिए तैयार है? वो शरीर लहजे में कहता उसे शदीद गुस्सा दिला गया। वो टेबल के नीचे से उसके पैरों के ऊपर अपने पैर उस ले जाकर तंजिया मुस्कुराकर उसे देखने लगी, जो अब चुप होकर रह गया, जबकि उसके पैर बहुत ऊपर तक सफ़र कर चुके थे। तभी अचानक से गजरान साई ने अपने दूसरे हाथ से उसके नाजुक पैर को पकड़कर सहलाया तो वो सख्त सटपटा कर रह गई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज लिटिल किड! वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि पीछे से एक मर्दाना आवाज़ पर वो दोनों चौंके, जबकि नूरे हरम अपने सामने खड़े शख्स को गुस्से से देखने लगी। हेलो मिस्टर किक! वो नजरें तंजी अंदाज में उस जगह पर मस्कर करती हुई बोली जहां उसने उस किक किया था, और वो उसकी नज़रों से अपनी शौखी भूलकर हाथ रखकर उस किक को याद करने लगा। हेलो लिटिल कैट! हमें भूलकर किसी और को अपना कर तुमने अच्छा नहीं किया। वो शख्स गजलान साई को देखते हुए चबा चबा कर बोला। गजलान साई, जो कब से खामोश बैठा था, इस शख्स की बात पर नजरें ऊपर उठाकर उसे देखने लगा, मगर उस शख्स की नज़रों में अपनी नूरे हरम के लिए हौस देखकर वो गुस्से से उठा, लेकिन उसे नूरे हरम की आवाज़ ने रोका। मिस्टर किक, शायद हमारा किक भूल गए हो आप, जो हमने आपको मारा था, और जहां मारा था वो आज भी हमें अच्छे से याद है। वो तंज़ी अंदाज में उस शख्स से कह रही थी जो उसे खबासत भरी नज़रों से देख रहा था। लिटिल कैट, अच्छे से याद है, और इसका बदला जल्द लूँगा तुमसे। अब तो एक सुनहरा मौका हाथ लगा है, उसे मैं कैसे हाथ से जाने दूँ? पर फिर मुलाकात होगी, अभी चलता हूँ। वो शख्स गजलान साई को मैनी खेजी से देखता उसे कहते हुए वहाँ से निकला। ये कौन था? गुस्ताख लड़की, हमें कभी क्यों नहीं बताया इस बदतहजीब इंसान के बारे में? गजलान साई और इस शख्स के जाते ही नूरे हरम से गुस्से से पूछने लगा। अब उसके चेहरे और लहजे में वो पहले वाली शरारत नहीं थी, अब सिर्फ गुस्सा रकम था, हर तासर में और लहजे में। ये खबीस इंसान डैड के बिजनेस पार्टनर हारून मलिक है। पता नहीं डैड कैसे कैसे लोगों को अपने साथ काम के लिए रखते हैं। हमें सख्त गुस्सा आता था इसकी नज़रों से, और इसकी मौजूदगी हमें सख्त जहर लगती थी। वो सख्त गुस्से से उस शख्स के मुतालिक बताने लगी। गजलान साई तो डैड के बिजनेस पार्टनर पर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां घुसकने लगा। मतलब ये वही शख्स था जो एक बेबस बाप की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उसकी बेटी को उस बाप को ब्लैकमेल करके हासिल करना चाहता था। अच्छा सही, आप खाना खाएं, फिर हम आज रात किसी होटल में रुकेंगे। सुबह होती यहाँ से निकल जाएंगे। आपने अगर आज हमें हॉस्पिटल यहाँ शहर में ज़बरदस्ती करके ना लाया होता ना, तो आप इस जैसे बदतमीज शख्स को फिर से ना देखते। वो उसे टेबल पर रखे खाने की तरफ मुतवज्जो करते हुए कहने लगा तो नूरे हरम खामोशी से खाना खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन राइट हैंड की वजह से वो रुक गई। क्या हुआ, क्यों रुक गई आप? वो उसे हाथ रोके हुए देखकर पूछने लगा। हमसे खाया नहीं जा सकेगा, और हमें लगता है आपसे भी नहीं खाया जा सकेगा। इस हाथ की वजह से अब हम क्या करें? वो बेचारगी से उसे देखती हुई बोली। हमसे क्यों क्या नहीं खाया जाएगा, गुस्ताख लड़की! वो शरीर नजरों से उसे देखते हुए फिर से शरारत से पूछने लगा। वो आप भी शायद लेफ्ट हैंड से खाते हो? वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोली, क्योंकि वो उसके साथ रहकर भी कभी गौर नहीं किया कि वो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड। गजलान साहब इसकी शर्मिंदगी से झुके सर को देख दूसरे हाथ से उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगा, फिर उसकी थोड़ी को छोड़कर निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा। हम लेफ्ट हैंड ही हैं, हमसे हर काम लेफ्ट हैंड ही से होता है प्यारी। कभी तो हमें बहुत अफसोस होता है जब हम सीधे हाथ के बजाय उल्टा हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन आज खुशी हो रही है कि हम अपनी गुस्ताख लड़की को इसी हाथ से खिला तो सकेंगे। वो उसे निवाला बना बना कर खिलाने लगा और साथ में खुद भी एक दो निवाले बनाकर खाने लगा। इसी तरह वो उसके पास को भूल कर खाना खाने लगी, जबकि कोने वाली कुर्सी पर बैठा शख्स इन दोनों की इस तरह खाना खाते हुए बहुत सारी तस्वीरें लेने लगा, जैसे वो दोनों अनजान एक दूसरे की आंखों में गुम खाना खा रहे थे। रात के अनजाने किस पहर गुले राना की आंख अपने ऊपर किसी के सख्त
گرفت اور سخت دباؤ کو محسوس کر کے جھٹکے سے کھل گئی۔ اس وقت اپنے اس میں شدید تکلیف کی لہر کو اٹھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کے حلق سے ایک سسکی نکلی تو وہ اپنا سر پکڑتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بری طرح سے لہذ کر وہ واپس لیٹی۔ اپنے جسم کے ہر حصے میں تکلیف کے باعث درد کو اٹھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، اور وہ اسی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یکدم سے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو جلتے تندور میں جھونک دیا ہو۔ نہیں، جب اس نے آنکھیں نیچے جھکا کر دیکھا تو خود کو شریال بخش شاہ کے مضبوط تنگ حارس میں دیکھ کر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ تبھی وہ یکدم سے اس کے حارس کو توڑتی تکلیف سے اٹھ لہستی ہوئی اپنی ٹانگوں کو بامشکل گھسیٹتی بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ شریال بخش شاہ، نہیں، تم بھی ایک ہوش پرست مرد نکلے۔ میں تم پر ٹرسٹ کر رہی تھی۔ تم نے یہ سب کر کے مجھے بتا دیا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، جسم کے پجاری۔ وہ شاور کے نیچے آ کر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور اپنے جسم کو غصے سے رگڑتی ہوئی نفرت سے کہنے لگی۔ اسے اس وقت اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا جانا؟ وہ واش روم سے باہر نکلی تو شریال بخش شاہ کی بھاری گمبھیر آواز سن کر وہ نفرت سے اسے گھورنے لگی، جو بیڈ کرون سے ٹیک لگائے اسے مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نفرت! وہ چار لفظ کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ جو بیڈ سے اتر کر اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، وہ اس کے قدموں سے بالکل بھی نہیں گھبرائی، بلکہ نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتی رہی کھڑی اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانا، اب میں نے نفرت کرنے کی وجہ نہیں چھوڑی ہے، اب صرف پیار کرنے کی وجہ بنایا کروں گا۔ اس نازک سراپے کے گرد اپنا ہارس چھوڑ کر وہ اس کے بے حد قریب پہنچ کر اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتا اسے اپنے قریب کرتا، اس کے رخساروں کو باری باری چوم کر مخمور نظریں اس کی نفرت سے سرخ ہوتی آنکھوں میں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ سب کچھ چاہیے نا؟ تو یہ لو شریال بخش شاہ، یہ لو اور پوری کر لو اپنی ہوش کو، ابھی بھی جو باقی ہے اسے بھی پوری کر لو۔ یکدم سے وہ اسے خود سے دور کرتی کھینچ کر اپنی نائٹی کا کوٹ نیچے گرا دیا۔ اس نے جو ابھی اس نے شاور لینے کے بعد پہنا تھا، وہ حسانی انداز میں بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو گل؟ شریال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اسے اتنے غصے میں دیکھ کر، اور اپنے سامنے اس طرح کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے کی نائٹی کو کوٹ نیچے سے اٹھا کر اسے پہناتے ہوئے کہنے لگا، وہی جو تم جیسے مرد چاہتے ہیں۔ ایک عورت کے جسم کو خریدنا بہت پسند ہے نا؟ تم جیسے مردوں کو جسم پر پیسے خرچ کرنا، کتنے پیسے خرچ کرو گے اپنی بیوی کے جسم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے؟ میں جسم کو بتاؤ۔ وہ نفرت سے اسے سختی سے کالوں سے پکڑتی ہوئی چیخ کر بولی، جبکہ شریال بخش شاہ اس کی بات پر غصے سے اپنی مٹھیاں کھسکنے لگا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ! وہ حلق کے بل چیخا تو وہ خاموش ہو گئی اور اس سے سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی گردن کو دبوچ کر دوبارہ گڑگڑایا، تم میری رکھیل نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ اس کی غصے سے نیلی آنکھوں میں رگوں کو پھیلتے ہوئے گلے رانا صاف دیکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ بنا ڈرے اس کی نیلی آنکھوں میں نفرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بے ہوشی کا فائدہ خوب اٹھایا تم نے، بیڈ پر آ کر اور میرے جسم کے ساتھ کھیل کر۔ اب میں تمہاری رکھیل بن چکی ہوں۔ شریال بخش شاہ، تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں ہار گئی ہوں اس دنیا میں موجود تمہارے جیسے مرد سے۔ اب تم مجھے مارو یا جو مرضی کرو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے پر لگ کر نفرت سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگانا، لیکن آج ہاتھ لگا کر تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری محبت بھی جہانگیر زیب کی طرح نکلی، ہوش پرست نکلے تم بھی سب مردوں کی طرح۔ اور میں کیسے بھول گئی تھی تم سب مرد عورت کے جسم کے پجاری ہو۔ پھر میں نے کیوں تمہاری باتوں میں آ کر تم سے نکاح کر لیا؟ کیوں؟ وہ اس کے سینے سے لگی کہتی ہوئی آخر میں حسانی انداز میں کہنے لگی، تم خاموش کیوں کھڑے ہو شریال بخش شاہ؟ نوچو نہ میرے جسم کو سرکٹ کے داغوں سے، میرے جسم میں داغدار کر لو جیسے اس نے کیا تھا۔ تم میرے ساتھ محبت کے نام پر مجھے تکلیف دے کر تم بھی کرو نا یہ سب میرے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنی نائٹی دوبارہ نکالنے لگی تو شریال نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اب اس کی باتوں کا مطلب وہ سمجھ جا کہ کیوں وہ اتنی زیادہ غصہ کر رہی ہے۔ وہ جہانگیر زیب کے دیے زخموں کو سوچ کر یہ سب کہہ رہی تھی، مطلب اس کے چھونے سے وہ اندر سے جل رہی تھی۔ نفرت کیوں اس کی آنکھوں میں تھی، اس کے لیے وہ جان گیا، تم میری بیوی ہو۔ خبردار جو آئندہ اپنے منہ سے رکھیل لفظ
लफ्ज़ अपने लिए निकाला, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, और अगर तुम्हें छुआ भी है तो एक शौहर की नज़र से, किसी कस्टमर की नज़र से नहीं, और मैं नाजायज़ ताल्लुकात से ज़्यादा जायज़ ताल्लुकात पर यकीन रखता हूँ, और हमारे दरमियान एक पाक रिश्ता कायम है, तो तुम इससे गुस्से में गाली मत दो जाना। वो उसकी थोड़ी को छूकर उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके पहलू में आकर लेटा और उसके गुस्से की वजह से बुरी तरह से कांपते वजूद को अपनी पनाहों में लेकर कहने लगा। वो इसी तरह उसे अपने से लपेटे, अपने अंदर समोई पूरी आंखें खोले उसे ये रात जाग कर गुजार दिया था। हमें उससे कुछ पूछना है दादा साईं, खुदा के लिए हमें इजाज़त दें। फातिमा शाह अब्बास शाह से मिन्नत करती बोली। वो अली शाह से मिलकर उससे बस इतना पूछना चाहती थी कि उसने क्यों इसके भाई को मारा, क्यों उसके दिल में इतनी नफरत है इन सब के लिए। वो इसकी सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि वो और दस्तगीर शाह कज़न के अलावा एक अच्छे दोस्त भी थे। दस्तगीर शाह और उसे उसकी नफ़रत का पता चलकर बहुत दुख हुआ था। फातिमा बच्ची, हम जानते हैं आप उससे क्या पूछना चाहती हैं, आपको हक है, हम कौन होते हैं इजाज़त देने वाले। अब्बास शाह ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। फातिमा शाह, दूसरे दिन वो अब्बास शाह और दस्तगीर शाह के साथ अली शाह से मिलने गई तो उसे काल कोठरी नुमा जेल में देख नफ़रत से उसे घूरने लगी। क्यों? मुझे देखकर शौक लगा ना कि मैं इस जहर से कैसे बच गई। वो शदीद नफरत से अली शाह को देखती हुई बोली, हाँ, मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम बच कैसे गई। मैं तुम सबको मरते हुए देखना चाहता हूँ, पूरी शाह हवेली को बर्बाद होता अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो नफरत अंगेज नज़रों से उन तीनों को घूरते हुए सद लहजे में कहने लगा, क्यों तुम इतने नफरत में अंधे हो गए? दस्तगीर शाह का एक्सीडेंट किया तुमने, ऐसा क्यों किया? और क्यों सलार शाह को, अपनी भाइयों जैसे कज़न को तुमने मारा? क्यों? अली शाह, तुम्हें पता है तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ बोला, जहर पीने का नाटक किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फातिमा शाह शदीद गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ते हुए नफरत से पूछने लगी। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था फातिमा शाह, जिस दिन मेरी मीरब को तुम लोगों ने खुदकुशी करने पर मजबूर किया। अपने भाई और पोते को बचाकर उसे मौत की सज़ा के बजाय वो सज़ा दिया जो मुझे तुम लोगों से नफरत करने का बासित बना। वो नफरत और गुस्से से चीखते हुए कहने लगा, अली शाह, वो लड़की एक मकार थी और एक तवाइफ से कम नहीं थी। ये बात मैं जल्द साबित करके रहूंगी और गाजी भाई की बेगुनाही सबके सामने लाऊंगा। दस्तगीर शाह ने शदीद गुस्से से अपनी मुट्ठियां खिसकते हुए कहा। उसे आज भी यकीन था कि इसका गाजी भाई बेकसूर है। वो उस लड़की की हरकतों को इसी वक्त पहचान चुका था जिस दिन वो हवेली आई थी। बकवास बंद करो तुम अपनी। दस्तगीर शाह, मेरी मीरब पाक थी, वो तुम्हारे गाजी भाई एक गिरा हुआ इंसान है जिसने मेरी मीरब की इज्जत पामाल करना चाहा था। तुम कैसे उसकी साइड ले सकते हो? अली शाह शदीद नफरत से दस्तगीर शाह को देखते हुए कहने लगा, हूँ, अच्छा वो पाक थी अली शाह, तो फिर उस दिन जो हमने अपनी आंखों से देखा था वो फिर क्या था? तुम कैसे उस रात को फरमोश कर सकते हो? हाँ अली शाह। दस्तगीर शाह ने अली शाह को वो रात याद दिलाया जिस रात इन लोगों ने पहली बार मीरब बेग को किसी मर्द के साथ हवेली के उस रूम में देखा था जिसमें वो रह रही थी, हवेली के पिछले हिस्से में देखा था। दस्तगीर शाह आलम शाह को सख्त ताव आने लगा। वो इसकी सोच अली शाह पर थी कि वो इस रात को कैसे फरमोश कर सकता था। कहीं वो भी तो इस घटिया लड़की के जाल में फंस तो नहीं गया था। बाकी मर्दों की तरह क्या उसने भी इसके साथ वो गुनाह तो नहीं किया होगा जो आज वो ये सब करके अपने इस गुनाह को छुपा रहा हो। गाजी भाई को भी शायद उस दिन उस लड़की ने बाकी मर्दों की तरह सेड्यूस किया हो और गाजी भाई ने गुस्से में उसे कुछ सुनाया हो। शायद वो अपनी रिजेक्ट करने की वजह से नागन बनकर उसे डस कर अपना बदला ले चुकी थी। दस्तगीर शाह उस वक्त छोटा था, वरना गाजी को इल्ज़ाम लगाते वक्त सबको उसकी सच्चाई बता देता, लेकिन आज वो खुद को रोक ना सका। उस रात की बात वो अब समझा था कि वो लड़की क्या कर रही थी और किस करैक्टर की थी वो। दस्तगीर शाह ने अगर उस रात उस डाइन लड़की का असल चेहरा ना देखा होता तो वो भी बाकियों की तरह उस पर एतमाद कर लेता और गजलान शाह को ही जनानी मर्द समझ लेता। दस्तगीर आलिम शाह, तुम शायद नहीं जानते कि मैं उस रात को सारी रात सोचता हूँ और मेरा जिस्म इसी आग में जलता है जो उस रात के दूसरे दिन जलने लगा था। मुझे दरिंदा बनाने की वजह गजलान शाह है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा।
रات के अंधेरे में उस काल कोठरी से अली शाह की जनूनी आवाज़ सुनाई दी। वो फर्श पर बैठा उस गुनाह को सोच रहा था जो उसे माजी में किया था। अगर गांव वालों को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? क्या वो भी गजलान शाह की तरह मुझे सजा देकर, या मौत? वो अपने हाथों को अपने माजी की बातों को सोच सोच कर स्याह होते चेहरे पर रख कर गहरी गहरी सांस लेते ही कहने लगा, क्यों किए मैंने इतने सारे गुनाह, क्यों? अचानक वो पागलों की तरह अपने बालों को खींचती हुई जुनूनी अंदाज में अपना सर दीवार पर मारते हुए कहने लगा। फिर वो सर पीछे दीवार से लगाकर अपनी आंखें बंद करके अपने माजी की गलियों में खुद को गुम करने लगा, जहाँ सिर्फ इसके गुनाहों की यादें थीं, जिनकी यादें उसे सारी रात जागने पर मजबूर कर दिया करती थी। माजी, डार्लिंग तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, मैं लाहौर में आती ही तुमसे खुद मिलने आऊंगी। 21 साल मीरा बेग रात के पहर अपने रूम में अपनी ही हम उम्र और पार्टनर जक्की को देखकर बोली। वो यहाँ पहली बार अपनी खाला के इतने बड़े घर में आई थी, और जब यहाँ के सख्त रूल्स उसे पता चले तो वो सख्त उकता गई। लड़कियों को हमेशा एक चादर में खुद को कवर करना और बाहर ज़रूरत के तहत निकलना, मर्दों से तो बिल्कुल भी दूर रहना, ये सब अम्मा साई सलार शाह की माँ की ज़ुबानी सुनकर वो उस वक्त को कोसने लगी जब वो खुशी खुशी अपने मॉम के साथ यहाँ आने के लिए बेताब हुई थी। अब वो बहुत पछता रही थी, क्योंकि वो 21 साल हसीना क्लब और अपनी रातें रंगीन बनाने वाले ख्यालात की मलका थी। क्यों सिली गर्ल्स, मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा क्या? जक्की ने आगे बढ़कर उसे बेड पर धक्का देते हुए खुद उसके ऊपर झुकते हुए लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट सजाकर कहा, नहीं डार्लिंग, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। कसम से इस रूखी फीकी जिंदगी में आकर तुमने मेरी ये जिंदगी हसीन बना दी। वो उसकी थोड़ी को छूकर बेबाकी से बोली, और उस लम्हे जक्की को नहीं बल्कि एक मर्द को देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो पूरे एक माह से तरस रही थी ऐसी रंगीन भरी रात के लिए। सिली गर्ल, अब हम दोनों मिलकर इस रात को भी रंगीन बनाते हैं, बियर पीकर। और जकी ने अपनी शर्ट को खोलकर इसके अंदर से एक बियर की बोतल निकालते हुए मैंने खैरियत से कहा। वो दोनों भूल चुके थे कि ये सब जो वो कर रहे थे ये सब हराम है, लेकिन इनका तो ज़मीर मर चुका था। वो इन सबको तमीज़ कैसे कर सकते थे? डार्लिंग, यू आर सो हार्ड एंड कूल। वो खुशी से झूमकर जकी के लबों को छूकर बिया को सामने टेबल पर रखे गिलासों में निकालकर उसे पकड़ाकर खुद बोतल को अपने नाजुक लबों से लगा गई। दूसरी तरफ 20 साल अली शाह और 18 साल दस्तगीर शाह, जो दोनों गहरे दोस्त थे, वो अली शाह के जिद करने पर रात के इस पहर सब हवेली वालों के सोते ही अपने रूम से चोरी चुपके से बाहर निकले। और अब वो दोनों मीरा बेग के रूम की खुले दरवाजे से जो मनाजर देख रहे थे, ये मनाजर बहुत ही घटिया था, वो दोनों जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। 18 साल दस्तगीर शाह और 21 साल अली शाह आंखें फाड़े मीरा बेग को वरना किसी मर्द के साथ अजीब सी हरकतें करते हुए देख अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर रहे थे, और अपने जिस्म पर एक और तब्दीली भी वो दोनों शिद्दत से महसूस कर रहे थे। अली बख्श शाह तो वो तब्दीली ज़्यादा महसूस कर रहा था, इसका तो पूरा जिस्म पसीने से शरबू हो रहा था। अली, ये मीरा आप ही क्या कर रही हैं? इन्हें इस्लामी तालीमात के लिए इस दुनिया से दूर रखा गया था। इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इससे नहीं इन्हें बचाया गया था, लेकिन शायद आज इनकी मासूमियत इस बेहुदा लड़की की वजह से छीन गया था। और वो दोनों अंदर कमरे में होती बेहूदगी बेहयाई को देख रहे थे। 21 साल अली शाह दिलचस्पी से, जबकि 18 साल दस्तगीर शाह नासमझी से। तभी उसने अली बख्त शाह की जानिब देखा, जो आंखों में एक अजीब तरह का चमक लिए मीर बेग और उस अनजान मर्द को देख रहा था। वो उसे हिलाते हुए इस मनाजिर के मुतल्लिक पूछने लगा, तो अली शाह उसके हिलाने पर चौंका। पता नहीं शाह, लेकिन जो भी कर रही है पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अली बख्त शाह उस आंखों में वही चमक लिए सामने के मनाजर में खोया हुआ था। वो 21 साल लड़का, उसको पता नहीं था कि वो ये मनाजर देख कर क्यों अपनी रग रग में दौड़ते खून को गर्म और तेजी से दौड़ते हुए
क्यों महसूस कर रहा था। सामने की बेहयाई बेहूदगी से उसके पूरे जिस्म में क्यों चूंटियां रेंग रही थीं। अलीशा, ये आपको अच्छा लग रहा है? ये हमें तो बहुत अजीब लग रहा है। हमें पीर साईं ने हमें ये जो सबक दिया था आज उसमें क्या बताया गया था तुम वो भूल गए हो? तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि एक गैर मर्द और औरत जब तन्हाई में मिले तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। और आज ये देखकर हमें आहिस्ता आहिस्ता पीर साईं की पढ़ाई गई आज की सबक समझ में आई है कि क्यों एक गैर मर्द और औरत को तन्हाई में मिलने से मना किया गया है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों शाह हवेली के बच्चों को दुनिया से दूर किया गया है। वो 18 साल का होकर भी इतनी जल्दी से ये सब कुछ समझ गया कि क्यों इन्हें इस उम्र में दुनिया से दूर किया जाता है। आज उसने मिसाल देख ली। दादा साईं ने जो किया था अच्छा किया था। इस लम्हे उसे इनकी इस बात पर बहुत प्यार आने लगा, जबकि अली शाह इस सब पढ़ाई सबक के उल्टा असर ले रहा था। वो सोच रहा था कि मीरा बेग से कैसे दोस्ती करनी है, और वो कमरे में देख रहा था कि दस्तगीर शाह ने उसे खींचा और वहां से चलने का कहने लगा। कल से वो बेचैन हो रहा था, उसे चैन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसका ज़हन बार बार मीरा बेग के कमरे का मनाजर को सोच कर उसे पागल कर रहा था। ये क्या हो रहा है? क्यों मेरा जिस्म जल रहा है? क्यों बार बार मैं कल रात के मुतालिक सोच रहा हूँ? क्यों मेरा दिल भी वो सब करने को चाह रहा है? क्यों वो इतनी ठंड में गर्मी महसूस कर रहा था, बेसुकून हो रहा था। तभी उसने अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंका और एसी के बटन को उठाकर उसने कूल वाले बटन को प्रेस किया और रिमोट बेड पर फेंककर वो बेड पर गिरा और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए आंखें और ऊपर छत पर गाड़ते हुए कहने लगा, कल से मीरा भाभी क्यों मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है। वो आंखें बंद करके बुड़बुड़ाया। तभी उसके बंद आंखों की पुतलियों में मीरा बेग का वो रूप सामने आ खड़ा हुआ जो उसने कल रात पहली बार देखा था। वो अपने होठों को भींचकर अपने सीने पर हाथ फेरने लगा। रात के 3 बजे वो उस बेडरूम में आया था जहाँ कल मीरा बेग और वो आदमी वो गुनाह कर रहे थे जो आज उसके दिलो दिमाग में चलकर उसे बहका रहा था। मेरा दिल किसी चीज़ में क्यों नहीं लग रहा? क्यों मैं अंदर से जल रहा हूँ? क्यों वो सुबह पीर साईं की बातें मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वक्त बहरा हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था? मैं ये बात बाबा और दादा साईं से शेयर करने से क्यों घबरा रहा हूँ? यहाँ तक दस्तगीर शाह से भी मैं अपनी जलन को छुपाना चाहता हूँ। बस मीरा बापी से हम ये सब शेयर करने का क्यों दिल चाह रहा है? वो शर्टलेस बेड पर लेटा बेडशीट को पकड़कर बेड से अलग करते अपने ऊपर लपेटकर वो इस बेडशीट में रची मीरा बेग की खुशबू को पता नहीं क्यों अब बेइरादा सूंघने लगा। वो इसलिए डार्लिंग क्योंकि अब आप जवान हो गए और अब आप को एक साथी की चाह है जो आपकी रातें खास कर दे। तभी उसके ऊपर से किसी ने आकर वो बेडशीट खींचकर नीचे फेंका तो वो अपनी आंखें पट से खोलकर फटी आंखों से सामने खड़ी हस्ती को देखने लगी। आप वो सामने मीरा बेग को तंग कपड़ों में मुबलिस देखकर खुशी से उठते हुए ला बोला। पत्नी वो उसे अपने सामने इस हुलिये में देखकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गया था? हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारी मीरा आपी नहीं बल्कि आज से तुम मुझे अपनी बीवी समझ लेना। वो उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर झुकती हुई बेबाकी से बोली। उसने कल रात को इन दोनों लड़कों को देखा था जो अब जवानी की दहलीज पार कर चुके थे। दरवाजे के बीचों बीच खड़े वो उसे जक्की के साथ देखकर काफी हैरान हुए थे और इनकी फटी आंखों से उसे पता चल गया था कि वो लोग उस हवेली के बाहर की दुनिया से अभी तक वाकिफ नहीं थे। वो ने इस हवेली की दुनिया को दिखाने के लिए कल से बेताब हो रही थी और आज वो इंतजार खत्म हो गया जब उसने अली शाह को अपने रूम में जाते हुए देखा। अली शाह को अकेले देख उसमें सख्त गुस्सा तो आया क्योंकि अली शाह की निस्बत उसे दस्तगीर शाह भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मगर वो शायद इस बेहूदगी में इंटरेस्ट नहीं था बल्कि गजलान शाह की तरह वो नहीं निकला जैसे वो रोज़ सैड व्यूज़ करती थी। लेकिन वो बंदा शायद पत्थर दिल था जो इसके दांव से भी पिघल नहीं सका था। वो लड़की इसके बाप दादा और घर के लोगों के सोने का फायदा और खूब उठा रही थी। इस 21 साल इस दुनिया के तेज चलाके से अनजान लड़के को अपनी रास्ते चलाने का पहला कदम उठा रही थी। अलीशा अपने जिस्म पर उस बेहया लड़की को छूने से अब उस आग से खुद को आज़ाद होता महसूस कर रहा था और वो इस अंधेरी रात में इस कमरे में एक गैर महरम औरत के साथ और एक ऐसी लुफ्त में
وہ मुलविस होकर अपने आखिरत को संवारने के बजाय बिगाड़ रहा था। अभी तो वो गुनाह के दलदल में इतना गिर गया था कि आखिर अगर बाहर आया तो वो सबके सामने नजरें मिलाने से भी वो डरेगा। अभी तो वो गुनाह के लज्जत को मजे से सह रहा था, बाद में वो अपने बाप दादा से भी नजरें मिलाने से घबराने वाला था। डार्लिंग, अब हम आज रात को मिलेंगे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना किसी को पता चल गया तो वो हम दोनों को कत्ल कर देंगे। तुम नहीं जानते हमारे घर वाले कितने जालिम हैं और कितने ओल्ड सोच रखने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने हमें एक कमरे में से निकलते हुए देख लिया तो शोर मचाकर हमें जलील करेंगे। मीरा बेग सुबह के उजाले को फैलते हुए कमरे की खुली हुई खिड़कियों से देखती तेजी से अली शाह को उठाकर उसे कहने लगी। वो खुद को यहाँ हवेली वालों के सामने इतनी मासूम दिखाती थी कि इसके अलावा यहाँ इस हवेली में कोई मासूम नहीं है, इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कि अली शाह और उसके दरमियान कल रात जो हुआ था इसका पता यहाँ किसी को चले। वो उसे पोशीदा रखना चाहती थी। मीरब जी, वो मुझे पता नहीं क्यों ये सब करके अब बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा, बार बार दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है। अली शाह की आंखें खुली तो खुद को इस कमरे में गैर महरम औरत के साथ देखकर वो खुद से भी नजरें मिलाने के से घबराने लगा। वो गुनाह की रात खत्म होती ही दिन का उजाला फैलते ही इसके दिल में एक डर बैठाता चला गया कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। ये गुनाह करके अब उसे समझ में आ रहा था कि और एक एक करके पीर साईं की बातें उसके दिमाग में गर्दिश करने लग गई थी, तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा और खौफजदा होने लगा। डार्लिंग, डर रहे हो? अब जो किया है तुमने उसे पोशीदा रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बस तुम मेरे साथ कुछ साथ को एंजॉय करो। तुम ये समझो कि हम दोनों गैर नहीं थे, बल्कि अब हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कल रात मुझे लगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ जान। वो बेबाकियत से कहती उसे देखने लगी, जिसका चेहरा अभी भी खौफ और शर्मिंदगी से पीला था। तभी उसे इस शर्मिंदगी से निकालने के लिए वो अपनी वही अदाओं और बातों से उसे अपने जाल में फंसाने लगी, और वो इतनी आराम से फंस भी गया था। लेकिन अभी वो पकड़े जाने का डर इसके दिल में बैठा हुआ था। मीरब जी, हमें अब समझ में आया है कि सांसें रुक जाएं तो क्या होता है, और आप हमसे जुदा हुई तो हम मर जाएंगे। हमें अब ऐसा लग रहा है आप हमसे कभी दूर मत जाइएगा, वरना हम पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। वो पागल तो जल्द होने वाला था, लेकिन इस लड़की की मोहब्बत में नहीं, बल्कि जो इस लड़की ने उसे जिस गुनाह की लज्जत में आशना कराया था, इस लज्जत के ना मिलने की वजह से, और वो आगे वो गुनाहों में और भी ज्यादा इजाफा करने वाला था। इस वक्त वो इससे जान इस बेहुदा लड़की से अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि हौस का इजहार कर रहा था। क्या गाजी भाई ने मीरब आपी के साथ, वो कल रात मीरब बेग के साथ गुजरे लम्हों को सोच रहा था। तभी हवेली में इस बात का चर्चा शुरू हुआ तो यकदम से वो अपनी जगह से उठा और तेजी से उस रूम की जाने बढ़ा जहाँ कल रात मीरब बेग के साथ वो अपना चेहरा स्याह कर चुका था। मीरब, क्या ये सच है कि गजलान शाह ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी? शरियाल बख्श शाह अपने भाई के मुंह से अदा किए गए लफ्जों को सुनकर उसे गजलान गनी शाह पर सख्त गुस्सा आने लगा, जबकि वो इतना अंधा हो चुका था कि मीरब बेग ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो सही और गलत की पहचान से नाबीना हो चुका था। हाँ शहरी भाई, उसने पहले मुझे वहाँ बुलाया, फिर मेरे साथ। वो लड़की इतनी शातिर थी कि अपनी नकली आंसुओं से अली शाह समेत सब हवेली वालों को गजलान गनी शाह से सख्त नफरत करने पर मजबूर कर गई थी। मीरब, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा ही नहीं, माना भी है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, चाहे मुझे अपने दोस्त नुमा दुश्मन को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर उससे कहने लगा, जबकि अली शाह बाहर खड़ा नफरत और गुस्से की आग में जल रहा था और उसका दिल बार बार गजलान शाह की जान लेने का चाह रहा था। इस बात को एक माह हो चुका था। गजलान गनी शाह को मौत नहीं सजा सुनाई गई थी और इस गांव से निकल जाने के लिए कहा गया था। वो इस गांव से एक हफ्ता हो चुका था चला गया था। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजलान शाह, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जब आज सुबह अचानक मीरब बेग की खुदकुशी का सुना उसने, तो वो नौशदी नफरत और गुस्से से पागल होकर उस रूम की जानिब बढ़ा जहाँ गजलान शाह रहता था। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने लगी गजलान शाह की खूबसूरत तस्वीर को देख वो नफरत से आगे बढ़ा और इस तस्वीर को सामने रख वार्स को उठाकर उसने इस पर फेंकते हुए कहा, क्यों इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी है तुमने? जब उसने नहीं माना तो क्यों उसे जाने नहीं दिया था तुमने? हाँ बताओ। वो अपने
पैरों के तले उसकी तस्वीर को मसलते हुए नफरत से कहने लगा। इस वक्त उसके जिस्म में वही आग जल रही थी जो उस रात जल रहा था। वो तड़प रहा था, किसी साथी के लिए वो मचल रहा था, किसी के साथ वैसी ही रात गुजारने के लिए जो उसने पहली बार उस रात को गुजारी थी। मीरब जी, आप क्यों चली गई अपने इस दीवाने को अकेला छोड़कर? अब हमारी रात की साथी कौन बनेगी? कौन? वो यकदम से पागलों की तरह इन शीशियों के ऊपर बैठकर जो गजलान शाह की तस्वीरों के फ्रेम से निकल कर नीचे बिखरे थे, जोर जोर से रोते हुए कहने लगा। इसका जिस्म सच में तड़प रहा था। एक और गुनाह करने के लिए गुनाह की लज़्ज़त जब किसी इंसान को लगती है तो चाह कर भी वो इस इंसान से अलग नहीं रह पाती है। तुम रात के 2 बज रहे थे। अली शाह अभी तक जाग रहा था और इसके जागने की वजह उसका जलता जिस्म था। जब उसे गर्मी महसूस हुई तो वो कमरे से बाहर निकला और लॉन में जाकर अपने तपते वजूद को हवा के नज़र करके वो कुर्सी पर बैठा और आंखें बंद कर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी तो वो आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखने लगा तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो साख्त रह गया। हाँ, मैं ज़की मलिक, तुम्हारी नकली बीवी का नकली शौहर। वो तो मर चुकी है, अब वो तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है। तुम्हें भी उस वक्त का किसी की ज़रूरत है लाले? ज़की मलिक की नज़रें इस 21 साला लड़के पर थीं जो तड़प रहा था किसी साथी के लिए, किसी ऐसी रात के लिए जो उसने मीरब बेग के साथ उस रात को गुजरा था। ज़की मलिक पक्का खिलाड़ी था और मीरब बेग ने कराची से आते ही उससे मिलकर अपना एक कारनामा उसे सुनाया था और इनमें से इसके 2 कारनामे बहुत पसंद आए थे। वो गजलान शाह से तो अभी फ़ायदा नहीं उठाएगा क्योंकि वो समझदार लगा था उसे, जबकि अली शाह उसे जज्बाती लग रहा था। वो उसे जाल में फंसाकर उससे फ़ायदा उठा सकता था। तुम्हें कैसे पता चला कि हमें इस वक्त किसी साथी की ज़रूरत है? वो नासमझी से उसे देखते हुए पूछने लगा तो उसकी बात पर ज़की मलिक ने ज़ोर से कहका लगाया। हाँ। ज़की मलिक जोर से हंसने लगा। लाले, तू जवान है और एक जवान मर्द की ज़रूरत को सबसे बेहतर एक मर्द ही जानता है कि इस वक्त सामने वाले जवान को क्या चाहिए। वो शतरंज की पहली चाल चल चुका था जिसमें अली बख्श शाह फंस चुका था और अली बख्श इस बात से अनजान कि उसके साथ बाद में क्या होने वाला है। वो इस दलदल में फंसकर एक शरीफ इंसान से शैतान बनने के लिए इस रूम की जाने बढ़ने लगा जहां आज की रात वो एक साथ 2 गुनाह करने वाला था। एक, उस रात उसने क्या किया था और दूसरी, आज रात वो एक मासूम की जिंदगी और इज्जत को तबाह करके आने वाला था। इस वक्त मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? रात के अंधेरे में वो दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। अली शाह इस इमारत को देखकर हक्का बक्का रह गया क्योंकि हवेली के बाद वो अपने गांव में इतनी बड़ी और आलीशान इमारत को देख रहा था। लाले, अंदर तो चल, क्या इधर ही खड़े रहकर सारे सवाल पूछेगा? और ज़की मलिक ने उसे पकड़कर इस इमारत के अंदर कदम रखते हुए कहा, हमें जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने एक लड़की को फटे हुए लिबास में देख अली शाह शॉक्टेड रह गया। इसकी शॉक्टेड रहने की वजह सामने उस लड़की का कोमल सरापा था। आज 1 माह बाद वही मनाजर देखकर वो इसी हालत में चला गया जिस रात वो चिल्ला गया था। चुप कमीनी, पैसे देकर तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुम्हारे घर वाले इतने भी बेगैरत नहीं हैं जो पैसों की खातिर तुम्हें रखेल बनाएंगे। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि इनकी बेटी इस वक्त सिंध के एक गांव में किसी वडेरे के कमरे में गुजारेगी। पैसे मैंने इस गाड़ी वाले को दिए थे जो हमें कराची से यहाँ सिंध तक लाया था। तुम्हें अगवा किया था मैंने। तुम्हारे घर वाले तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर अब तक थक चुके होंगे। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहती है तो तू हमारे साथ दे, वरना हम तुम्हें यहीं रख कर रोज यूज करेंगे। आजा राजा, सुबह तक इस चिड़िया से खेल कर मेरे पैसों को खूब इस नाजुक रखेल से वसूलो। ज़की मलिक ने आगे बढ़कर उसकी लड़की के कपड़ों को मजीद फाड़ते हुए खबासत से कहा, तो वो इस लड़की को कराची से उठाकर लाया था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये गुनाह है और ये इस लड़की के साथ ज्यादती होगी। अली शाह की समातों में
अचानक से पीर साईं की बातें गूंजने लगी तो वो डर गया और सर नफ़ी में हिलाकर जकी मलिक से कहने लगा, क्या क्या कहा, फिर से कहना लाले। जकी मलिक ने नागवारी से अली शाह को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, मैं नहीं कर सकता, ये गुनाह है और ये लड़की को तुम वापस शहर छोड़कर आ जाओ। वो अब की संजीदगी से कहने लगा। जकी मलिक सख्त नज़रों से उसे घूरने लगा। मतलब इस चूजे के दिमाग में अभी भी गुनाह और सवाब का जंग चल रहा था। लाले, गुनाह तो सराज भी तुमने बड़े ही मज़े ले लेकर मीरब के साथ मिलकर किया था, क्या वो गुनाह नहीं था? हाँ, या फिर इस वक्त तुम्हारा ज़मीर मर चुका था या अब जागा है? जकी मलिक की बात पर वो उसे देखने लगा। वो शर्मिंदगी से महसूस करने लगा और खौफ भी। मैं शर्मिंदा हूँ उस रात के लिए, प्लीज़ तुम उसे लेकर जाओ खुदा के लिए। जकी मलिक तो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और उस लड़की को सर के बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके चेहरे पर झुका और ये देखकर अली शाह को शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया। जकी मलिक ये करके उसे दूसरा गुनाह करने के लिए उकसाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी पैंट की जेब बंद करता उस कमरे से बाहर निकला। आंखों में हौस की चमक लिए वो जकी मलिक की जानिब देखने लगा। अब इसकी दिल में कोई डर नहीं था और ना ही कोई खौफ। शाह हवेली के लोगों की गफलत की वजह से आज एक मासूम शैतान का रूप धार चुका था और बहुत सी कलियों का दुश्मन बन गया था। रोज इस गांव से गरीब घर की मासूम लड़की गायब होने लगी थी और शैतान की कैद में जाकर अपनी इज्जत गंवा कर दूसरे दिन गांव के उस कुएं से मुर्दा हालत में मिलती थी, जो इन हादसों के बाद इस अब सुनसान होकर रह गया था। दादा साईं, आखिर ये कौन कर सकता है? वो तो नहीं हो सकता, वो आजकल अच्छे काम करने में लगा हुआ है। ये कोई दूसरा हो सकता है। हमें जल्द इसका पता निकालना होगा, वरना कल को ये हवेली तक भी पहुंच सकता है। सईद आलम शाह ने अपने बाप की तरफ देखते हुए संजीदगी से, कल ही गांव की दो लड़कियां मदरसे से अपने घर जा रही थी। रास्ते में इन्हें किसी ने उठा लिया और आज सुबह ही इन दोनों लड़कियों की लाश इस कुएं के अंदर से बरामद हुई थी। सब गांव वाले परेशान हो गए थे और ये इनकी बेटियों के साथ हो रहा था, जिन्होंने गजलान गनी शाह को जिंदानी कहा था और उसे गालियां दी थी, इस पर पत्थर बरसाया था। ये सब इन लोगों के साथ हो रहा था और वो अपनी किस्मत पर रो रहे थे, जबकि ये मकाफात अमल है इस उससे वो सब लोग अनजान थे। चाचा साईं, ये जो भी है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम अपने सगे खून को बख्श नहीं सकते, तो फिर वो कौन होता है हम माफ़ करने वाला? इसकी हालत तो हम कुत्तों से भी बदतर करेंगे। शरियार बख्श शाह भी वही था, जो वो भी सख्त गुस्से में था। मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले के ऊपर अली शाह और दस्तगीर शाह जब अंदर दाखिल हुए तो वो लोग खामोश हो गए। शहरी, पता करो जल्द से जल्द, वो गुनाहगार हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। आलम शाह सही कह रहा है, वरना वो कल को यहाँ हवेली तक भी पहुँच सकता है। और शरियाल, तुमने अमजद को रकम दिया या नहीं? कल उसके बेटी की बारात रवाना होगी दूसरे गांव के लिए, आज ही उसे रकम दो, हमारी तरफ से उसके लिए तोहफा है। वो संजीदगी से शरियाल से कह रहा था लेकिन अली शाह के दिमाग में वो एक नया शैतानी प्लान डाल कर उस हवेली के एक मुलाजिम की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले थे। ये अगर इन्हें खबर होती तो वो अली शाह के सामने बात ही ना करते, बल्कि इन्हें अगर अली शाह की सच्चाई का पता होता तो उसी वक्त उसे जान से मार देते। दादा साईं, क्यों ना हम वो रकम देने अमजद बाबा के घर जाएं? अली शाह ने फरमाबरदारी से कहा। हाँ अली बच्चे, तुम जाओ, बल्कि अब तो तुम दूसरे गांव जाओ शादी में शिरकत करने के लिए। वैसे भी शहरी यहाँ के हालात देखेगा। अब्बास शाह ने वो काम एक शैतान के हवाले कर दिया, जबकि वो शैतान चेहरे पर फरमाबरदारी सजाए दिल ही दिल में इन सब की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, खासकर अपने भाई पर, जो बेगुनाह को गुनहगार और गुनहगार को मासूम समझ रहा था। जकी मलिक, आज की रात तेरे लिए मैं खुद शिकार करने जा रहा हूँ, वो भी अपनी हवेली के मुलाजिम के बेटे की नई नवेली दुल्हन का। अली शाह गुनाह कर करके अब संगदिल बन चुका था। उसके सीने में वो सब एहसास मर चुके थे जो पहले हुआ करते थे। वो शर्मिंदगी, खौफ भी अब मर चुका था। उसके दिल में सिर्फ मासूम कलियां ही घूमती थीं। अली शाह, तुम मेरे लिए शिकार करोगे? जकी मलिक आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा, जिसने शुरू दिन में सख्ती से सामने आने से मना किया था। इसके लिए इन छोटी
پیور لڑکیاں ذکی ملک ہی اٹھا کر لاتا، وہ تو صرف ان لڑکیوں کے پاس اپنا چہرہ چھپا کر انہیں برباد کرنے کے بعد ان کا گلا گھونٹ کر ذکی ملک کو انہیں ٹھکانے لگانے کا کہتا تھا۔ ہاں میں علی شاہ، اور تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے اپنے بھائی جیسے یار کے لیے ایک خوبصورت پری لا کر اس کی خدمت میں پیش کر دوں، جیسے میرا بھائی میرے لیے کرتا ہے۔ وہ خپاست سے ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا، کمینے، تو اپنے بھائی کے لیے یہ کر رہا ہے یا اپنے لیے؟ یہ مجھے اچھے سے پتا ہے۔ چل شاہ، شاباش، جس کے لیے بھی کر رہا ہے تو جا کر اٹھا کر لا ہماری نئی نویلی رکھیل کو۔ ذکی ملک نے خباثت بھرے لہجے میں کہہ کر اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا، ہاں لیکن میں الگ انداز میں کروں گا اس رکھیل کو اغوا، تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ جگر، اگر سب کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں تو ہم کو یہ سب قتل کر دیں گے۔ وہ آنکھ کمینگی سے دبا کر کہتا، آخر میں اسے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلا۔ اب اس کے قدم امجد بابا کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے اس کے قدم بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی زندگی سے خوشیوں کے دن کم ہوتے جا رہے تھے۔ دلہن کو ہمارے حوالے کر دو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ امجد بابا کے بیٹے اور دلہن کو وہ اپنی کار میں لیے گاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا، تبھی سامنے سے ایک گاڑی نے آ کر ان کا راستہ روکا اور بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو علی شاہ نے کھڑکی کھول کر جب ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو ان میں سے ایک نے غصے سے کہا، ہو اس کا مطلب تم لوگ وہی لٹیرے ہو جو رات کی تاریکی میں نکلتے ہو معصوم بچیوں کی عزت تار کرنے کے لیے۔ آج تم ایک شاہ کے ہاتھ لگے ہو، اپنی خیر مناؤ۔ وہ یہ سب صرف امجد بابا کے بیٹے اور بہو کو دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ ان سب کو اس نے ہی ہائر کیا تھا۔ پہلے اپنی تو خیر منا، کیسے بچے گا تو یہ سوچ، اور اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی بندے نے آگے بڑھ کر اس کی کمپٹی پر زور سے پستول مارتے ہوئے کہا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ خوبصورتی سے ڈرامہ کر رہا تھا اور اس کے ڈرامے پر وہ بندہ اسے دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ تبھی اس کے اشارہ کرنے پر ایک آدمی نے آ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا جو اس نے پہلے سے لاک کھولا تھا، جو آسانی سے اس شخص سے کھل گیا تھا۔ باہر نکل سندری، دلہن بنی حسین لڑکی کو اس بندے نے کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے کہا، اور تو یہ لے، بہت زبان چلا رہا ہے نا۔ اس آدمی نے علی شاہ کے سر پر مارا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ علی شاہ کو اس نے صرف دکھاوے کے لیے زور سے ہٹ کیا تھا، ورنہ اسے اتنا نہیں لگا تھا۔ وہ تب تک بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جب تک اس آدمی نے دولہے کو بے ہوش نہ کر دیا۔ دولہے کے بے ہوش ہوتے ہی علی شاہ اچانک سے اٹھا اور خباثت بھری نظروں سے دلہن بنی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اس آدمی نے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر گاڑی سے باہر نکلا اور اس سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیتا خود اس نازک وجود کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے۔ جب گاڑی کے اندر سے لا کر اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا تو وہ ہوش میں آ گئی اور اپنے اوپر ایک نقاب پوش کو جھک کے دیکھ وہ چیختی ہوئی کہنے لگی، نہیں ڈارلنگ، اب ہم اس وقت چھوڑیں گے جب تمہاری ٹانگیں جواب دیں گی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اپنی درندگی کے نشان بے دردی سے چھوڑنے لگا۔ وہ لڑکی آنسو بہاتی اپنے دولہے کو آوازیں دینے لگی اور پھر علی شاہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کا دولہا اور وہ دونوں وہاں نہیں تھے، وہاں صرف وہ دونوں تھے اور یہ ہیبت ناک کالی رات تھی۔ وہ درندہ معصوم کلی کو اپنی مٹھیوں میں قید کر کے مسل رہا تھا اور وہ زور زور سے چیخ کر اسے اپنی بربادی کی ماتم منا رہی تھی۔ اس درندے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی عزت تار کی ہوگی۔ اس اندھیری رات کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کو پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بہت سارے تھے۔ وہ روتی چیختی ہوئی، شدت سے ہاتھ پیر مارتی ہوئی ان ظالموں کے ظلمات کا شکار ہوتی رہی تھی۔ جب سب نے اسے نوچ کھسوٹ کر اس کی عزت کو اس سیاہ تاریک رات میں اسے رسوا کر دیا تو وہ آگے بڑھا اور اس کی تھوڑی کو اپنے شکنجے میں لے کر ایک پستول اس کی نیم بھرما ہتھیلی پر رکھا، یہ پکڑو اور صبح ہوتی ہی اپنے شوہر کے سامنے تم خود کو مارو گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا میری رکھیل تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم لوگ تمہارے شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ درندہ سخت انسان اس کی عزت لوٹنے کے بعد اب اس کے ایک گناہ کرنے کے لیے دھمکا رہا تھا، اسے خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ وہ پستول سختی سے اس کے ہاتھ میں تھما کر سرد لہجے میں
इस मासूम के नढाल जिस्म के ऊपर झुका और उसके कान के लहू को बेदर्दी से काटने के बाद सख्त लहजे में उसे धमकी देने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो गाड़ी में अपनी वरना जिस्म को अपनी चुनरी तले देखती और अपने हाथ में उस पिस्तौल को महसूस करती वो मासूम लड़की बुरी तरह से सिसक सिसक कर रोने लगी। मारवी जब शर्जील की आंखें खुली तो खुद को सड़क पर देख वो उठा और अपनी दुल्हन की जोरदार रोने की आवाज़ पर वो तेजी से गाड़ी की जाने बढ़ा, लेकिन अपनी दुल्हन को बेलिबास देख वो कुछ देर इसी तरह साख्त खड़ा उसे देखने लगा। फिर उसकी मातम करती आवाज़ पर वो चौंका। मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, वो जोर जोर से चीखती हुई कह रही थी। शर्जील रोते हुए आगे बढ़ा और उसे अपनी चादर से कवर करते उसे अपने साथ लगाकर खुद भी जोर जोर से रोने लगा। यकदम से वो उसे दूर करती उसे उस बड़े से चुनरी को अपने गिर्द लपेट कर गाड़ी से बाहर निकली और वो पिस्तौल जो उस जालिम इंसान ने कल रात उसकी हथेली पर रखा था वो अपनी कम पट्टी पर रख कर शर्जील को देखने लगी, जो फटी आंखों से गाड़ी से निकल कर उसे देख रहा था। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार इस गांव के बड़े और बासर वडेरे हैं शर्जील, मुझे पता है कि मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मरियम और मुस्कान की तरह मुझे भी ये लोग नज़रअंदाज कर देंगे और इस दरिंदे को नहीं ढूंढेंगे जो छुप कर ये सब कर रहा है, मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ रात की तारीकी में खेल रहा है। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मैं हार गई हूँ, सब कुछ हार गई, अपनी इज्जत भी। अब मुझे मरने दो मुझे छोड़ो। उस छोटे से घर के सामने दुल्हन बनी वो शहजादियों की तरह खूबसूरत लड़की रोती हुई अपनी कमपट्टी पर पिस्तौल रख कर बोली, आज ही तो वो रुखसत होकर दूसरे गांव से यहाँ इस गांव में आई थी और आज ही के दिन उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। अगर अपने शौहर को मरते हुए नहीं देख सकती तो ये ले पकड़ और जा अपने ससुराल वालों के सामने खुदकुशी कर, वरना तेरे साथ साथ हम तेरे शौहर को भी ऊपर पहुंचा देंगे। उस जालिम इंसान की सर्द आवाज़ भी अभी तक उसकी समात में गूंज रही थी। वो बेबसी से सुर्ख आंखों से सामने खड़े अपने शौहर को देख रही थी। मारवी, खुदा के लिए पिस्तौल नीचे करो, उसका शौहर रोते हुए उससे कह रहा था। वो जानता था कि उसकी बीवी पर इस वक्त क्या बीत रही है। इज्जत तो वो गंवा चुकी थी, लेकिन अब वो उसे खुदकुशी जैसी गलती करने हरगिज नहीं दे सकता था। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसकी हालत पर वो बहुत तड़प रहा था। नहीं शर्जील, वो नफ़ी में सर हिलाती पिस्तौल गिरफ्त सख्त कर गई। उस इंसान की धमकी की वजह से अब वो ये करने पर मजबूर हो गई थी और अब वो रुक नहीं सकती थी। वो कैसे उसको मारते हुए देख सकती थी जैसे आज सुबह ही तो वो अपना नाम तक उसे सौंप चुकी थी। नहीं मारवी मेरी जान, तुम ये गुनाह नहीं कर सकती हो, हम बड़े शाह से बात करेंगे, वो इन्हें ढूंढ निकाल कर सबके सामने लाएंगे, देखना तुम्हें और मरियम मुस्कान के को जल्द इंसाफ मिलेगा। वो अब तक सर नफ़ी में हिला रही थी, तभी पीछे से अली शाह की आवाज़ सुनाई दी, बहन ये गुनाह मत करना खुदारा। अली शाह सामने सड़क पर गिरा सिर्फ बेहोशी की नाटक कर रहा था। वो यकदम से उठकर ऐसा करने लगा जैसे उसे अभी होश आया था। वो उठा और अब फिर से अपना ड्रामा शुरू करने लगा। बहुत दूर झाड़ियों के पीछे छुपा जक्की मलिक इस ड्रामेबाज को देख उसे एक मोटी गाली देते हुए हंसने लगा। नहीं, मुझे पता है मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा शर्जील, तुम्हें मुझसे भी बेहतर और पाक लड़की मिलेगी। वो आंसू से लबरेज आंखों से शर्जील को देखती ट्रैगल दबाने लगी। तभी माहौल में फायरिंग की आवाज़ गूंजी और एक नस्वानी सी चीख भी। शर्जील जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा था, वो फायर की आवाज़ पर साख्त नज़रों से सामने गिरती अपनी बीवी को देखने लगा, जिसे अपनी कमपट्टी पर गोली चलाकर वो गुनाह कर लिया जिससे वो उसे रोकना चाहता था। इसकी बंद पलकों को देख वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इसकी नाजुक वजूद को पकड़कर दीवानों की तरह रोने लगा। हाल जक्की मलिक, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी वजह से यहाँ बंद हूँ, जल्दी आकर मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊँगा। वो इस जेल में बैठा पागल हो चुका था, क्योंकि 2 दिन से इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी और वो अपने दिल को और पूरे जिस्म से आग के शोले भड़कते हुए महसूस कर रहा था। फातिमा शाह, यहाँ से निकलती ही तुम इन लड़कियों की जगह लोगी जो मेरी ज़िंदगी में एक रात के लिए आने वाली थी, लेकिन अब तुम मुझे एक रात की बजाय सारी रातें दोगी। अपना वो नफरत से फातिमा शाह को अपने जलते दिल
میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دستگیر عالم شاہ، تمہاری بیوی کو تو میں تم سے جدا کر کے تمہیں سزا دوں گا، اور غزلان شاہ تم سے تو ذکی ملک بدلہ لے گا اور خوب لے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ذکی ملک غائب ہے، تم اس کا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ وہ زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ وہ ذکی ملک کو اب اچھے سے پہچان چکا تھا، اور وہ اب اس سے یہاں سے نکالنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذکی ملک کچھ کرنے والا ہے، کچھ بڑا۔